Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about heat. What is heat? Heat is a form of energy. It can be transferred from one body to another due to difference in temperature. Heat cannot be transferred if there is no difference of temperature between two bodies. We also discussed the unit of heat. There are basically two units of heat. The System International unit of heat is joule. 1 joule is equal to 1 Newton meter and 1 Newton meter is equal to 1 kilogram meter square second inverse square. Calorie is the another unit of heat. 1 calorie is the heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree centigrade. In order to convert joule into calories or calorie into joule, 1 calorie is equal to 4.81 joules. We also discussed some of the sources of heat. As we know that sun is the main source of heat. In our daily life we can get heat in a form of burning of wood, fossil fuel like coal, natural gas, oil, etc. Heat can also be produced by frictional. For example, whenever two bodies are rubbed against each other, heat is also produced. Electricity can also be a source of heat. Heat is also produced by certain chemical reaction like biochemical reaction occur in body produce heat. Similarly, calcium oxide when added in water it also produce heat. We also discuss effect of heat. Heat can cause change in state of matter, change in chemical reaction, expansion of solid, liquid and gases. Fourth one, an increase in temperature. Wind, rain, waves in sea are produced due to increase in temperature. So these are basically some of the main points of previous lecture. We see that heat can cause change in the expansion of solid, liquid and gases. Now in this lecture we see that how expansion of solid occur. So let's start. Thermal expansion of solids. सॉलिड बच्चों आपके पास एक्सपेंशन कर सकते हैं. एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? एक्सपेंशन आपके पास उसकी लेंथ वाइज या उसकी वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो जाना एक्चुअली क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ड्यू टू हीट. वी सी दैट द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ऑन हीटिंग. जितने भी आपके पास मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं इनको अगर आप हीट करेंगे तो इनकी लेंथ वाइज और इनके वॉल्यूम वाइज आपके पास इनमें चेंजेस आ जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेंशन इन सॉलिड. अब एक्सपेंशन सॉलिड में दो तरह की होती हैं. एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन और दूसरे को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेन है, अगर इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी तो इसको मैं कहूँगा लीनियर एक्सपेंशन. और अगर इसके वॉल्यूम में मीन टू से ये मोटा हो जाता है तो इसके वॉल्यूम में अगर इंक्रीज आ जाते हैं तो उसको मैं कहूँगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. सो सॉलिड में दो तरह की आपके पास क्या होती हैं? दो तरह की एक्सपेंशन हो सकती है with the help of heat. First one is linear expansion, second one is volumetric expansion. Now what is linear expansion? The expansion of metallic object due to heating and increase in the length is called linear expansion. यहाँ मैंने लेंथ की TH लेंथ. अगर हीट की मदद से किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन. और अगर आपके पास the expansion in volume of metallic object due to heating is called volumetric expansion. अगर आपके पास किसी भी metallic object के वॉल्यूम में आपके पास इंक्रीज आते हैं due to heat, is this phenomena is called actually volumetric expansion. Is that clear? Now let's see linear expansion with the help of diagram. एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं जिसकी मदद से हमें लीनियर एक्सपेंशन क्लियर हो जाएगा कि लीनियर एक्सपेंशन किस तरह होता है. डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको जर्नल डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ. यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक नीडल है. एक नीडल मैं लेता हूँ. आई टुक अ नीडल और उस नीडल को मैं दो वुडन ब्लॉक के ऊपर रखता हूँ. वन वुडन ब्लॉक एंड दिस वन इज सेकंड वुडन ब्लॉक. मैंने क्या किया? एक नीडल लिया जिसको मैंने टू वुडन ब्लॉक के ऊपर रख लिया. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मैंने क्या रख लिया? मिरर रख लिया.
इस नीडल को डायरेक्टली इस साइड वुडन ब्लॉक के ऊपर नहीं रखा बल्कि मिरर के ऊपर रख लिया। 3 बातें। फर्स्ट वन, टेक अ वुडन ब्लॉक ऑफ अबाउट 1 मीटर इन लेंथ, देन टुक one side of needle at a wooden block and second side on a mirror which is placed on a wooden block. थर्ड आपने क्या करने, इस नीडल ब्लॉक को आपने हीट करने से पहले आपने क्या करने, इस नीडल के नीचे आपने क्या करने, लेट सपोज एक स्ट्रॉ आपने लेनी है और स्ट्रॉ के अंदर आप पतली सी कोई भी वायर पास कर लें या पतली सी कोई नीडल पास कर लें। ये आपके पास एक स्ट्रॉ है, उस स्ट्रॉ के अंदर पतली सी एक वायर पास की हुई है, आपको ये ब्लैक जो दिखाई दे रही है ये वायर पास की हुई है या कोई भी नीडल आप पास कर सकते हैं। और वो नीडल जो है आप इस सेकंड वाले इस नीडल के सिरे के नीचे क्या कर लें, रख लें। अब ये नीडल यहाँ से मिरर के ऊपर है और मिरर के नीचे हमने क्या रख लिया, यहाँ पे स्ट्रॉ में जो आपके पास नीडल पास हुआ है वो इसके ऊपर रख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से एक पेपर स्केल हमने बना लिया जिसकी रीडिंग 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है। ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह आपने बनाना है। वुडन ब्लॉक लेने, उसके ऊपर एक मेटालिक आपने नीडल रखना है और यहाँ वुडन ब्लॉक के ऊपर आपने क्या करना है, एक मिरर रखना है और एक स्ट्रॉ लेनी है और स्ट्रॉ के अंदर आपने एक नीडल पास करने, नीडल पास करेंगे, उस नीडल को आपने इस सेकंड वाले जो मेन नीडल है उसके नीचे रखना है। सो टेक अ मेटालिक रॉड अबाउट 1 मीटर इन लेंथ, clamp its one end, let its other end rest on a needle. Is that clear? A long needle or a thick wire passes through the end of straw which act as a pointer, जो हमारे पास पॉइंटर का काम करेगा। When the rod is heated by candle, इस रॉड को आपने कैंडल की मदद से क्या करने, हीट करने। The pointer moves, आपके पास जब कभी भी आप इसको गर्म करेंगे तो आपके पास होगा क्या, इसकी लेंथ में और इसकी वॉल्यूम में तो इंक्रीज आएगा। आपको पता है कि सॉलिड 2 तरह की एक्सपेंशन कर सकता है, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो यहाँ पर इसके नीचे जो नीडल रखा हुआ है तो वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से वो नीडल भी आगे पास हो जाएगी। इज दैट क्लियर या नहीं, ऐसा ही होगा या नहीं। जब आप इसको गर्म करेंगे एक तो लेंथ में इंक्रीज आएगा और दूसरा वॉल्यूम में। लेंथ में इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो इसके नीचे नीडल रखा हुआ है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जब आपके पास वो आगे की तरफ मूव करेगा तो जाहिर है आपके पास अगर ये स्ट्रॉ पहले स्ट्रेट थी, इस तरह थी, जब ये इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो मूव करेगा तो स्ट्रॉ भी आपके पास यूँ इस तरह इस साइड पे मूव करती हुई यहाँ तक आ जाएगी। तो इसकी मूवमेंट से एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि आपके पास लीनियर एक्सपेंशन हुई है। ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन दिस इंडिकेट दैट द लेंथ ऑफ द रॉड हैज इंक्रीज ड्यू टू विच अ नीडल रोल फॉरवर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर कैन बी सीन। दिस एक्टिविटी इलस्ट्रेट लीनियर एक्सपेंशन इन मेटालिक ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। जस्ट आपको आपकी बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है, समझाने के लिए आपको लीनियर एक्सपेंशन किस तरह होता है आपको इस फिगर से इजीली क्लियर हो सकता है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है, किस तरह वॉल्यूम में एक्सपेंशन आती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को समझने के लिए हम इसी तरह एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को समझने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक मेटालिक स्फीयर ले लें जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक मेटालिक स्फीयर ले लें जो कि आपके पास इजीली पास हो सकता हो, किससे, रिंग से। ये आपके पास रिंग आ जाते हैं और ये मेटालिक स्फीयर आ जाते हैं। टेक अ मेटालिक स्फीयर विच कैन इजीली पास थ्रू द रिंग एज शो इन फिगर। फिर क्या कर लें, इस मेटालिक स्फीयर को हीट कर लें। हीट द मेटालिक स्फीयर एंड ट्राई टू पास थ्रू द रिंग अगेन। हीट करें और फिर इससे पास करने की कोशिश करें।
इन दिस केस द स्फीयर डज नॉट पास थ्रू द रिंग। जब आप हीट करेंगे तो आपके पास ये जो स्फीयर है इस मेटालिक रिंग से पास नहीं होगा। वाई? बिकॉज ड्यू टू हीटिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बिकम ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द रिंग। पहले केस में इसका जो डायमीटर था वो कम, तो इजीली इससे पास हो सकता था। आफ्टर हीटिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बिकम इंक्रीजेज ड्यू टू विच इट कैन नॉट पास थ्रू द रिंग। डज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आल्सो इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग? क्या वॉल्यूम हीटिंग की मदद से इंक्रीज हो गया? यस, एक्चुअली ड्यू टू इंक्रीज इन डायमीटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आल्सो इंक्रीजेज। डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो गया। नाउ इफ द स्फीयर इज कूल डाउन, अगर मैं दोबारा स्फीयर को कूल करता हूँ, then it will contract due to which it will be able to pass again through the ring. This activity show that volumetric thermal expansion and contraction of metallic solid. I hope it is clear now. Simply हमने क्या किया, एक मेटालिक स्फीयर लिया, उसको रिंग से पास किया जो कि इजीली पास हो सकता था। हीट करने के बाद हमने इससे पास करने की कोशिश की तो पास नहीं हो रहा था। इसका मतलब इसकी डायमीटर में चेंज आ गया। डायमीटर मीन टू से इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया ड्यू टू हीटिंग। सो इट्स इजीली सी दैट ड्यू टू हीटिंग द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम अकर विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। टॉपिक है बच्चों हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। सॉलिड की तरह लिक्विड भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है हीटिंग की मदद से, और कूल करने के बाद क्या हो जाते हैं, हीट करने से एक्सपेंड हो जाते हैं और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में एक्टिविटी 9.3 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लें, एक फ्लास्क ले लें जिसको आप कलर वाटर से फिल कर लें। फिल द फ्लास्क विद द कलर वाटर। सेकंड, उस फ्लास्क के अंदर आप क्या कर लें बच्चों, इंसर्ट अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास ऑफ प्लास्टिक थ्रू अ कार्ड टाइटली इनटू द माउथ ऑफ फ्लास्क। एक लॉन्ग ट्यूब ले लें, पतली सी एक लॉन्ग ट्यूब ले लें, या प्लास्टिक की बनी हो या आपके पास स्ट्रॉ की फॉर्म में जो आपके पास गिवन होती है, या प्लास्टिक से बनी हो या आपके पास ग्लास से बनी हो, और इसको आप क्या कर लें, कॉर्क के अंदर फ्लास्क के माउथ में टाइट कर लें। अब ये कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक्चुअली आपके पास एक ब्लैक सा रबड़ होता है जो आपके पास उस बर्तन के एक्चुअली जो फ्लास्क है उसके माउथ को बिल्कुल टाइटली बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उस कॉर्क के अंदर आप क्या कर लें, कॉर्क के अंदर सुराख किए जाते हैं, और सुराख के अंदर आप क्या कर लें, सुराख के अंदर आप अपने जो प्लास्टिक की जो ट्यूब है या ग्लास की ट्यूब है वो इसके अंदर फ्लास्क के अंदर टाइट करके बंद कर लें। तो डायग्राम से ये सेकंड पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। कलर वाटर ले लें फ्लास्क के अंदर, फिर क्या कर लें, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब कॉर्क की मदद से टाइटली फिक्स कर दें। थर्ड, यू विल ऑब्जर्व दैट कलर वाटर रेज इन दी ट्यूब मार्क द कलर वाटर लेवल ऑन द ट्यूब। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि आप जब भी उसके अंदर कलर वाटर के अंदर उस एक्चुअली लॉन्ग ट्यूब को ऐड करेंगे, डिप करेंगे, तो ज़ाहिर है वो कलर वाटर क्या हो जाएगा, उस ट्यूब के अंदर कुछ हाइट तक आ जाएगा, कुछ हाइट तक वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस हाइट तक वो पानी कलर वाटर उस ट्यूब के अंदर आ गया, उस पॉइंट को आपने मार्क करने हैं। किसके ऊपर, उस ट्यूब के ऊपर मार्क करने कि किस लेवल तक आपके पास इसके अंदर पानी आ गया। फोर्थ पॉइंट में क्या कर लें, फिर आप क्या कर लें, इस वाटर को गर्म कर लें। हीट द फ्लास्क वाटर फर्दर रेज अप इन दी वाटर ट्यूब। फ्लास्क को गर्म करने के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे जो वाटर मार्क हमने पहले लगाया था विदाउट हीटिंग, उससे भी ऊपर आपका जो वाटर लेवल है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज़ होने की मदद से हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि आपके पास वाटर में क्या होगी, हीटिंग की मदद से एक्सपेंशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सिमिलरली अगर इस वाटर को आप कूल करेंगे
कूल करने के बाद दोबारा वो मार्क जो है बिल्कुल लोअर लेवल पर आ जाएगा, जो इजीली आपको ये बताता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हुई है ड्यू टू कूलिंग। नाउ सी दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक फ्लास्क लिया हुआ है जिसमें इजीली आपको ये फ्लास्क है जिसके अंदर ब्लू कलर का कोई भी वाटर लिया हुआ, वाटर ब्लू कलर का लिया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। कलर लिक्विड इसके अंदर लिया हुआ है जिसका कलर क्या है, ब्लू है। अब इसको यहाँ से ब्लैक टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रबड़ है। इस रबड़ के अंदर क्या डाला हुआ है, पाइप डाला हुआ है। और इस रबड़ के अंदर, इस रबड़ को एक्चुअली क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। कॉर्क के अंदर पतली सी ट्यूब डिप की हुई है। जब आप इसके अंदर ट्यूब डिप कर लेते हैं स्टूडेंट, तो डिप करने के बाद वाटर का लेवल लेट सपोज यहाँ तक आ गया, यहाँ तक वाटर का लेवल आ जाता है। क्लियर है? फिल द फ्लास्क विथ कलर वाटर। फिल कर दिया हमने। इंसर्ट अ लॉन्ग ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब थ्रू द कॉर्क एंड फिट विथ द कॉर्क टाइटली इनटू द माउथ ऑफ फ्लास्क। कॉर्क की मदद से हमने जो पतली सी ट्यूब थी वो इस कलर वाटर के अंदर फिक्स कर दिया। थर्ड हमने ये देखा, यू विल ऑब्जर्व दैट कलर वाटर इन द ट्यूब विल रेज अबाउट द कॉर्क इन अ ट्यूब। आपने देखा कि जो कलर वाटर था वो आपके पास इस पतली ट्यूब के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसका लेवल बढ़ गया, यहाँ तक आ गया। आपने उस मार्क को नोट कर दिया। फिर आपने इसी फ्लास्क को हीट कर दिया। When we heat the flask, water level further rises up in the tube. It is because water expand on heating. जब हमने इसको हीट किया तो वाटर का लेवल पहले यहाँ तक था विदाउट हीटिंग। जब हीट किया तो आपके पास वाटर लेवल लेट सपोज इससे आगे हो, काफ़ी आगे चला गया। तो इससे हमें ये पता चला ड्यू टू हीटिंग वाटर का जो लेवल है इंक्रीज होना हमें ये बताता है कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अकर। सो इस एक्टिविटी की मदद से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिक्विड के अंदर भी आपके पास क्या होता है, लिक्विड के अंदर भी आपके पास एक्सपेंशन हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन इन लिक्विड। स्टूडेंट, कम टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। We know that like solid and liquid, gases also expand on heating and contract on cooling. In order to explain this phenomena, let's perform an activity. जैसे कि स्टूडेंट सॉलिड और लिक्विड आपके पास एक्सपेंड होते हैं हीटिंग से और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूलिंग से, इसी तरह गैस भी आपके पास एक्सपेंड होती है हीटिंग से और कॉन्ट्रैक्ट होती है आपके पास कूलिंग से। इसी फिनोमेना को देखने के लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। आपकी बुक में एक्टिविटी 9.4 गिवन है, तो इसको चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ ग्लास बॉटल एंड स्ट्रेच अ बैलून ऑन इट्स माउथ। आप एक ग्लास बॉटल ले लें जिसके ऊपर आप बैलून को लगा दें। सेकंड, हीट द फ्लास्क। फ्लास्क को हीट कर लें। द बैलून इन्फ्लेट द एयर इनसाइड द फ्लास्क एक्सपेंड एंड हीटिंग एंड इंटर द बैलून्स। जब आप फ्लास्क को हीट करेंगे तो बैलून क्या हो जाएगा, मतलब बैलून भर जाएगा, हवा से भर जाएगा। अब हवा कहाँ से आ जाएगी, द एयर इनसाइड द फ्लास्क। जब फ्लास्क के अंदर जो एयर होगी वो हीटिंग की मदद से एक्सपेंड हो जाएगी और आपके पास बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट्स हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, नाउ कूल द फ्लास्क। जब हम फ्लास्क को कूल करेंगे आपके पास बैलून क्या हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास व्हेन कूल, जब आप फ्लास्क को कूल करेंगे तो आपके पास दोबारा जो उस बॉटल के अंदर, उस ग्लास के अंदर जो एयर थी वो दोबारा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बैलून से नीचे आकर आपके पास फ्लास्क के अंदर जमा हो जाएगी। सो दिस शो दैट गैस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। नाउ लेट्स सी दिस विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। डियर स्टूडेंट, यहाँ इस डायग्राम में, इस फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक बॉटल है जिसको अंदर एक पानी के टब में रखा हुआ है और इसको डायरेक्टली हम हीट नहीं कर रहे। पानी के टब में इस बॉटल को रखा हुआ है जिसको हम हीट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक गुब्बारा बांधा हुआ है। अब कंसिडर करें कि इस बॉटल के अंदर हवा होगी, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब इसको
हमने हीट नहीं किया तो बैलून आपके पास इन्फ्लेट्स था। लेकिन जब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, एयर के मॉलिक्यूल्स थे, वो आपके पास एक्सपेंड हो गए। एक्सपेंड होने की वजह से ये बैलून्स के अंदर आ गए और बैलून्स की में आने की वजह से आपके पास बैलून्स क्या हो गया, इन्फ्लेट्स हो गया। तो इससे इजीली हमें ये क्लियर होता है कि आपके पास गैसेस भी एक्सपेंशन कर सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, यहाँ हम डायरेक्टली इसको हीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी भी आप ग्लास को डायरेक्टली हीट करेंगे तो आपके पास फट सकता है, इसीलिए हम इसको वाटर के अंदर रख कर इसको हीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कम टू दी मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर। In the today lecture, we discuss about the thermal expansion of solid. We see that the length and volume of metallic object expand on heating. The expansion in length due to heating is called linear expansion, while that in volume is called volumetric expansion. We also explain the volumetric expansion with the help of activity. So main point is linear expansion. We took a metallic rod of about 1 meter in length and a long needle or a thick wire passes through the end of straw which acts as a pointer. When the rod is heated by candle, the pointer moves. This indicates that length of rod has increased due to which the needle rolls forward and movements of pointer can be seen. Third main point, volumetric expansion. We see that volumetric expansion with the help of activity. We took a metallic sphere which can easily pass through the ring as shown in figure. Heat the sphere and try to pass it through the ring again. In this case, the sphere does not pass through the ring because due to heating, the diameter of sphere becomes greater than the diameter of the ring. Due to this, the volume of sphere also increases. Actually, due to increase in diameter, the volume of sphere also increases. So that's why it does not pass into the ring, which easily clarifies that volumetric expansion of solid. Fourth point, thermal expansion of liquid. Liquid expand on heating and contract on cooling. Like liquid, it can be expanded with the help of activity. We took a flask and fill with colored water. Insert a long tube which is made up of plastic or glass and tightly fit into the cork. With the help of cork into the mouth of flask, you will observe that colored water in the tube will rises above the cork in a tube. When we heat the flask, water level further rises up in the tube. It is because water expands on heating. 6 points, thermal expansion of gases. We know that like solid and liquid, gases also expand on heating and contract on cooling. In order to explain this phenomena, we explain with the help of activity 9.4, in which we took a glass bottle and stretched a balloon on its mouth, heat the flask. The balloon inflates, the air inside the flask expand on heating and enter the balloon. Now let the flask cool again. This balloon deflates when cool. This activity shows that gases expand on heating and contract on cooling. So this is all about the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. Student, describe the uses of expansion of liquid in our daily life. एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हो सकती हैं, इस पर आपने नोट लिखना है. एंड सेकेंडली, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इन तीनों की आपने क्या करनी है, डायग्राम्स बनानी है. इज दैट क्लियर? और अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का बिहेवियर आपको याद होना चाहिए. बहरहाल एक्टिविटीज़ वगैरह एग्ज़ाम में नहीं आती. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ऑल पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.